Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, an investor desk. Today I'm going to share the detailed fundamental analysis of one more company. The name is Petronet LNG. It is a large cap company and it is a PSU company, public sector undertaking company. And here I'm going to cover the detailed fundamental analysis, technical analysis, and the company overview. So first of all, starting with the company overview. Petronet LNG is India's largest importer of liquefied natural gas, as it is not a government company due to the structures of its shareholding pattern. Petronet was formed in the pursuance of the cabinet decision in 1997 with the state owned by the GAIL, ONGC, BPCL एंड IOC. एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही अच्छे करंट जो इसका प्राइस है दैट इज 242 रुपीज़ के पास में ये ट्रेड कर रहा है. बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है और इसके अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोफाइल और जिस तरह से ये लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, फर्दर एनर्जी सेक्टर जैसे बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉमिसिंग है और मतलब पॉसिबिलिटी है इस सेक्टर की फर्दर और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्योंकि वी ऑल नो कि राइट नाउ ये जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस में है. सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, आप एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज देर आर सो मेनी रीज़न. कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी बहुत ही सेफ कंसिडर की जाती है एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक और अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रोफाइल. सो नाउ थोड़ा सा इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगी. पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड क्लास पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द इंडियन एनर्जी सेक्टर. It has set up of the country first LNG receiving and regasification terminal at Dahej, Gujarat, with a present nominal capacity of 17.5 mega million metric tons per annum, MMTPA. 17.5 है इसका. And the another terminal at Kochi, Kerala, have a nominal capacity of 5 MMTPA. The company is also exploring the suitable opportunity within or outside the India to expand its business presence. Petronet LNG Limited was founded in 1998 and it is based in Delhi, New Delhi, India. Petronet LNG was formed as a joint venture by the company government of India to import LNG and to set up the LNG terminal in the country, involving India leading oil and natural gas industries like GAIL hold a 12.50% stake in this company. Oil and Natural Gas Corporation, ONGC, hold 12.50% stake, and IOCL hold almost 12.50% stake in this company, and BPCL also the same 12.50% stake. Overall ये कंपनी जो है, कंपनी इज लीडिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस की मेजर्स में आती है. सो वी ऑल जस्ट थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूंगी द यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल हाइड्रो कार्बन used as a source of energy for heating, cooking, and electricity generation. It is also used as a fuel for vehicle and as a chemical feedstock, and it is manufactures for plastics and other commercially important organic chemicals. So basically बहुत वास्ट तरीके से नेचुरल गैस का यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में. And the company have a world-class LNG infrastructure focused on the higher capacity utilization and better operational efficiencies. यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैं बिजनेस जो इस तरह से डाइवर्सिफाई मैंने पे वर्क कर रहा है. सॉलिड कार्गो पोर्ट एट दहेज, स्मॉल स्केल LNG एक्सप्लोरिंग the business opportunity in the neighboring countries like Sri Lanka, Bangladesh, Andaman and Nicobar Island, and Mauritius. City gas distribution, direct marketing, and air separation unit. यहाँ पर ये इनका थोड़ा सा जो बिजनेस है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्यू दिया है. 12 मई को इसने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था, एट दैट टाइम इसका जो प्रॉफिट हुआ 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था टू द RS ऑफ 882 करोड़ का. 30 एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज में हाईलाइट करी हूँ. पेट्रोनेट एलएनजी अनाउंस दैट डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला हैज बीन सीज्ड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनीज. एंड 2 मार्च की भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है. पेट्रोनेट एलएनजी हैज इनकॉर्पोरेटेड अ होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड फॉर अंडरटेकिंग द
गर्ट्स ऑपरेशन, यहाँ पर ये इन शॉर्ट में मैं इसका फुल फॉर्म गैस्पिंग अप एंड कूलिंग डाउन। सो ओवरऑल ये जो गर्ट्स प्रोसेस होता है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सर्विस टू डिस्प्ले द इनर्ट गैस फ्रॉम द एलएनजी वेसल स्टोरेज टैंक एंड इट इज कूल डाउन टू द एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। एलएनजी बंकिंग एंड अदर अलाइड सर्विसेज। Number of shareholders is 3.8 lakhs. Market cap is 37,170 crores की है एंड 1 ईयर में रिटर्न परसेंटेज इज 11.75%, 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज 7.23%। बायर डिमांड इसकी बहुत अच्छी है एंड ईपीएस बी प्लस है एंड ईपीएस स्ट्रेंथ भी इसकी गुड है। फर्दर आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द स्टॉक समरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, आप देखिएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 37,170 करोड़ की है। सेल्स जो है वो उसकी बहुत ही अच्छी है। शेयर्स इन फ्लोट इज 75 करोड़ के हैं एंड नंबर ऑफ फंड्स 13.03% के हैं एंड शेयर हेल्ड बाय द फंड इज ऑल्सो इन पॉजिटिव 0.88%। डेट है कंपनी के पास बट बहुत ही कम है, बट उसका कैश फ्लो कंपनी का है दैट इज़ वेरी गुड, 19.09% का इन करोड्स में डेटा ये गिवन है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ वेरी गुड, 24% की है एंड पीई रेशियो इज़ 14 and earning stability is 19. EPS growth rate is also very good, 31% के। group rank is 120 out of 197 and rating जो है वो B plus की है, price 1025 है। and the important thing जो यहाँ पे जो notice करने वाली है, कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा, डिविडेंड yield is 6.05% की है, book value is 3.34%। सारे के सारे जो इसके कंपनी से रिलेटेड जो पोटेंशियल को कंपनी की शो करते हैं, स्ट्रॉन्गनेस को शो करते हैं कि सारा इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑल द जो बेसिक थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे इसके पॉजिटिव हैं। कंपनी की ईपीएस अर्निंग का डेटा अगर नोटिस किया जाए तो फ्रॉम 2013 से जो ऑलमोस्ट जो ये ईपीएस अर्निंग है वो इसकी ग्रोइंग फेज में है एंड राइट नाउ कितना ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट 2019 के कंपैरिजन में 2020 में 14.87 था और यहाँ पे जो 2020 में 18.02 हुआ है, तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है इसके ईपीएस ग्रोथ में। और नोटिस किया जाए तो कंटिन्यूसली जो ईपीएस है वो उनकी ग्रोइंग फेज में ही है एंड ओनरशिप पैटर्न जो है 50% प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, 6.3% के हैं एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, 30.49% है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इज 9.86% एंड लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली यहाँ पे डिडक्शन दिख रहा है। अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं 3.35%। और यहाँ पे कुछ टॉप ओनर्स के नेम मैं हाईलाइट करूँगी, जैसे बीपीसीएल हो गया, गेल, आईओसी एंड ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली कि यहाँ पर ये 2.38% का स्टेक हेल्ड करती है। कोटेक फ्लेक्सी कैप 2.07% एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो बहुत अच्छे कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। Now I am further sharing the some more important investment checklist which we have to check before investing in any company। and यहाँ पे बहुत ही एक टिकर टिप का प्लेटफॉर्म, easily डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे आप खुद भी जाकर एक वेरीफाई कर सकते हैं। सो आउट ऑफ द 5 पैरामीटर्स, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पैरामीटर, फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न वर्सेस एफडी, डिविडेंड, एंट्री पॉइंट एंड नो रेड फ्लैग। ऑल द 5 पैरामीटर्स जो है वो उसके ग्रीन है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो ग्रीन है वो शो करती है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, which means that in future the price of this company will share price of this company will increase। and return versus एफडी, कंपनी जो है वो डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी मतलब इसका ठीक है क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा करेक्शन इसमें है बिकॉज राइट नाउ जो निफ्टी है वो भी इन द करेक्टिंग फेज में है। So here I am highlighting the forecasting data, और forecasting data में 80% एनालिस्ट जो यहाँ पर सजेशन है कि इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, ऑलमोस्ट 36 एनालिस्ट ने इस पे कवरेज दे रखी है एंड 80% रिकमेंडेशन है बाइंग की।
फर्दर मैं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर कर रही हूँ। आप नोटिस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि टोटल रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूअसली 2017 से ग्रोइंग फेज में है टिल नाउ 2020 में काफ़ी अच्छा है, बट 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। बट इनकी नेट इनकम जो है वो कंटिन्यूअसली जो ग्रोइंग फेज में है, एंड एबिटा भी इनका ग्रोइंग फेज में ही है। सारे के सारे जो फाइनेंशियल के पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, पीएस भी ग्रोइंग में है, डीपीएस, ऑल द पैरामीटर्स, नेट इनकम भी बहुत अच्छी है एंड हायर देन द इंडस्ट्री नेट इनकम। यहाँ पे ओवर लास्ट 5 years में नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 24.47% वर्सेज द इंडस्ट्री एवरेज इज 11.56%। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि कंपनी जो कितना अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इंडस्ट्री के एवरेज में कितना अच्छा इनका इनकम का एंड रेवेन्यू दोनों का ही मतलब इम्प्रूव मतलब बहुत अच्छी है इनकी। रेवेन्यू जो है यहाँ पर इसका रेड में है, और जैसे आप नोटिस कर सकते हैं 2019 के कंपैरिजन में 2020 में यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ओवर द लास्ट 5 year रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है एक मतलब नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। ओवर द लास्ट 5 year मार्केट शेयर इज डिक्रीज फ्रॉम 83.02% टू 74.3%। सो बोथ द फैक्टर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स है बोथ दोनों ही हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर व्यू मिलेगा कंपनी से रिलेटेड। बट स्टिल जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है एंड करंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करें तो बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। इधर मैं आपके सामने पेयर टू पेयर कंपैरिजन का डेटा यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, और इनकी पेयर कंपनीज के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे जो नोटिस इंपॉर्टेंट थिंग है नोटिस करने वाली कि इसका इस कंपनी का जो पेट्रोनेट एलएनजी का पी रेशियो है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी लो है, एंड यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबिलिटी शो करती है कि फर्दर जो है इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव होगा। And here I'm highlighting the dividend data, and according to the data available on this ticker tape platform, dividend बहुत अच्छा कंपनी दे रही है। 8 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने 2020 में दिया है, नवंबर 23 में। और जैसे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स को अपने बहुत ही अच्छा डिविडेंड ऑफर कर रही है। 7 रुपीज़ का 2020 में 15th को, मतलब 2020 मतलब इन आप एक ऐसे ईयर वाइज का मतलब अगर ईयरली के अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 2 बार कंपनी ने जो 15th of July को भी डिविडेंड दिया था एंड देन 23 नवंबर को भी। तो बहुत अच्छा डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ये कंपनी देती हुई दिख रही है। फर्दर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका शेयर कर रही हूँ जो जो कि टेक्निकल्स है, और यहाँ पर एक आज मैंने एक जस्ट एक चैनल क्रिएट किया है जहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो चैनल्स में ही अभी तक परफॉर्म कर रही थी, और राइट नाउ जो है वो थोड़ा सा निफ्टी जो है वो वीकनेस शो कर रहा है फ्रॉम 2-3 डेज से। सो काफ़ी अच्छे प्राइस वैल्यूएशन पर आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे मैंने इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। और एवरी टाइम नोटिस किया गया है कि फरवरी मंथ में भी जब ये जो सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है इसके ऊपर जब कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसने अपसाइड मूव दिया था। एंड सेम पॉसिबिलिटी इस सेम जो सिचुएशन है सेम सिनेरियो इज ऑल्सो यहाँ पे बन रहा है, और ये जो कैंडल्स लगातार यहाँ पे फॉर्म हुई है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास फिर ये जो है अवेलेबल है, एंड फर्दर पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड अगर मूव करता है फ्रॉम दिस पॉइंट, बट थोड़ा सा निफ्टी जो है वो वीकनेस शो कर रहा है तो माइट बी मतलब वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। बट राइट नाउ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता कर रहा है, ये 242 के 242 के समथिंग अवेलेबल है, और फर्दर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाता है तो ये 255 जो होगा फर्स्ट टारगेट, एंड द सेकंड टारगेट विल बी 271 रुपीज़। सो आप यहाँ पे इसको कंपनी को अपने पॉजिटिव्स में रखिए और इसका मोमेंटम नोटिस करिए, और जितने अच्छे वैल्यूएशन पर आप इस मतलब मिल जाएगा तो और अच्छा है। जस्ट मैंने यहाँ पे RSI और स्टॉकिस्टिक्स RSI 2 इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द अभी थोड़ा सा वीकनेस है बिकॉज निफ्टी इज़ आल्सो वीक एंड फर्दर। बट यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ कि आप 1 फरवरी का अगर नोटिस करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास राइट नाउ अवेलेबल है, एंड फर्दर जो अपसाइड इसने मोमेंटम दी थी, देन अगेन थोड़ा सा करेक्शन, एंड देन जो फर्दर इसने मतलब इसने चैनल अभी तक नहीं ब्रेक किया था, बट राइट नाउ जो अभी ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है ये आप इसको रेजिस्टेंस की तरह मतलब जो कैंडल बनी है वो अब द चैनल बनी है, और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मिड में ये जो है वो थोड़ा सा राइट नाउ अवेलेबल है, और थोड़ा सा निफ्टी की वजह से भी थोड़ा
अपसाइड मूव होने की ट्राई कर रहा है, बट ट्राई मतलब हो नहीं पा रहा है। एंड अगर ये इस पॉइंट को अगर यहाँ पे फर्दर क्रॉस करता है, सो देन द पॉसिबिलिटी है इसकी अपसाइड मोमेंटम की। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसका मोमेंटम नोटिस कीजिए, और जितने अच्छे करंट वैल्यूएशन पर ये मिल जाएगा उतना अच्छा रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को दे सकता है। भी इस कंपनी से रिलेटेड 20 अप्रैल की एक न्यूज़ है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। पेट्रोनेट एलएनजी प्लान्स बंकरिंग सर्विस टू ओशंस गोइंग शिप फ्रॉम इट्स कोची टर्मिनल। सो फर्दर ये ऑपरेशन पे भी कंपनी जो है वर्क कर रही है। एंड ग्लोबली शिप्स आर स्लोली कन्वर्टिंग टू द एलएनजी और अदर ग्रीन फ्यूल्स। यहाँ पे कुछ जो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंपनी जो है वो बंकरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, एंड वो डेफिनेटली मॉप अप आर रेवेन्यूज एज वेल। सो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे स्टेटमेंट है। इनके वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर्स भी यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व होते हुए मतलब स्टेटमेंट में अवेलेबल है। सो हेयर आई एम मतलब पूरा डिटेल जो कंपनी से रिलेटेड था और टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स भी मैंने कवर कर दिया। अब मैं ओवरऑल इस कंपनी से रिलेटेड समरी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज़ आप इसको इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। आप आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू ओवरव्यू करें आप इस वीडियो का, जिससे आपको और क्लियर व्यू मिलेगा कि कंपनी जो है वो कितनी पॉजिटिवली मैनर में वर्क कर रही है। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, सो आपको एक और अच्छा मतलब राइट नाउ जो जिस तरह से करंट ऑपरेशंस जो इनके अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस में आ जाएंगे। एंड इफ़ अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो लार्ज कैप कंपनी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है। Expecting a volume trajectory would improve from year 2022 or the Dahej utilization to be over 100% increase in the Kochi terminal, utilization from 15% to 40%, and commissioning of additional 2 LNG tanks by 2023, and would increase the Dahej capacities to 19.5 metric ton. Rising the domestic supply is a key factors for the significant growth in the future. Company is also looking to expanding business in the LNG regasification terminal and FSRU initiative being explored in the Sri Lanka, Bangladesh and Andaman and Nicobar's Island and Mauritius. Fundamental parameters बहुत अच्छे हैं, good है, buyer demand इसकी, EPS strength great है, 90 current price is less than the intrinsic value. Stock has generating the better returns as on equity as compared to FD. Stock is providing a good dividend yield of 5.04%, net rising net cash flow and cash from the operating activity. Growth in a quarterly net profit with the increasing profit margin and year on year. Company with a low debt and the low promoter holding, low pledged promoter holding, effectively using the shareholder fund, return on equity and and the annual net profit improving from the last 2 years. Number of MF schemes, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है अपनी यहाँ पर 34 से टू 136 मतलब यहाँ पे काफ़ी बिग क्वांटिटी में जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे इंक्रीज होते हुए मतलब 34 से 136 स्कीम्स और इन्वॉल्व हुई है। नंबर ऑफ FII and FPI increased from 714 to 108 in March quarter 2021. FPI have increased the holding from 29.49% to 30.49%, and institutional investors increased the holding from 36.49% to 36.81% in March quarter 2021. Strong momentum है, पॉजिटिव ट्रेंड है, हाई वॉल्यूम है, फ्रॉम द लास्ट 5 डे डिलीवरी परसेंटेज इज अराउंड 50%। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है विद हाई ROC एंड लो PE। लेटेस्ट न्यूज़ थी यहाँ पर मैंने और 28 अप्रैल की, वो मैंने अभी आपके साथ में शेयर कर दी है। सो ओवरऑल कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हायर and have with a higher potential, so you can consider this stock as a portfolio stock. And please do the self analysis also before investing in any company. And if you have any question related to this company, so please the comment below, and I request you to don't put whole capital in just one company. Make your portfolio in the diversify manner. So and just a request, please like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.